موبائل سے باتیں کرنے، موبائل سے گندی گندی فلمیں دیکھنے، موبائل سے اپنے زندگیوں کو برباد کرنے اور فری فائر میں اپنی زندگی کو لگانے والوں سنو غور ساتھ، آج اس کے ہاتھ میں موبائل لایا، ایک میسج آیا، ہائے، پھر ہیلو، پھر ہیلو، پھر ملو، تب ملو، بوائے فرینڈ بولتا تھوڑا یہ دکھا دو، کھول دیا۔ استغفر، افسوس کی بات، اس مولوی سامنے جب جائیں تو ایسا لگتا ہے یہ فرشتہ کی بہن ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موبائل انسانوں کی ایمان کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ بند کمرے کے اندر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب اس موبائل کے اندر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، میں بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہوں، وہ ویڈیوز بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کبھی فرمایا تھا، آئی میرے بیٹے، یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ آئی میرے بیٹے، او میرے بیٹے، یاد رکھنا، تم اگر کسی پہاڑ کے اوپر ہو، کسی زمین کے اوپر ہو، کسی چٹیل میدان کے اندر ہو، کہیں تم رہو، آئی میرے بیٹے، تم اللہ کی اس پاور کو ہمیشہ سمجھتے رہنا، یا آتی بھی اللہ، جو کام تم کر رہے ہو چاہے وہ رائے کے دانے کے برابر وہ کام کیوں نہ ہو، رائے کے برابر کیوں نہ ہو، اچھا کرو یا برا کرو، کل قیامت کے دن تمہارے ان اعمال کو، ان کام کو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا۔ اب انسان کو اگر احساس ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے، موبائل سے باتیں کرنے والوں، موبائل سے گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں، موبائل سے اپنے زندگیوں کو برباد کرنے والوں، پب جی اور فری فائر میں اپنی زندگی کو لگانے والوں، سنو غور سے سنو، یہ نعمتیں جو تمہیں ملی ہوئی ہے، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کی قدر لوگ نہیں کیا کرتے، الصحت والفراغ، تندرستی اور فرصت کے اوقات۔ آج تندرستی ہے جوانوں، اچھے اعمال کر لو، نیک عمل کر لو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے کہ تم بیمار پڑ جاؤ، اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کے اندر ذمہ داری کی بوجھ آ جائے، اس سے پہلے اپنی اس زندگی کو تم، اس نعمت کو تم، اس تندرستی کو تم غنیمت جانو۔ الصحت والفراغ، آج تندرستی آپ وضو بھی بنا سکتے ہیں، ابھی بڑھاپے کی عمر میں کیا وضو بنائیے گا ٹھنڈی میں؟ ہاں، ٹھنڈی میں وضو بنائے گا آدمی؟ نہیں بنا سکتے، بڑی پریشانی ہوتی، مومن ہی یہ کام کر سکتے ہیں میرے بھائیو۔ تو یہ جوانی کی عمر میں آپ سب کچھ تندرستی ہے اور فرصت کے اوقات، اگر آپ کو وقت ملا تو ہمارے فاروق کی طرح رات کی تاریکی میں آپ اٹھو، نماز پڑھو، اگر آپ کو فرصت کے اوقات ہیں تو امام اوزاعی کی طرح اٹھو اور رات کی تاریکی میں وضو بناؤ اور تہجد کی نماز پڑھو، رو گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ ففازت عینا، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے نیچے رکھے گا، اس کو سایہ ملے گا، جو اللہ کی راہ، اللہ کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایسے جوان بنو، ایسی لڑکیاں بنو، ہاں انسانوں غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، غلطی کر لینے کے بعد اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، معافی مانگو۔ امام اوزاعی کو دیکھو، امام اوزاعی رات کی تاریکی میں اٹھا کرتے تھے، وضو بنایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسی نماز کے دوران سجدے میں اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ زمین بھیگ جایا کرتی تھی، زمین بھیگ جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، صبح کے وقت اس کی خادمہ آئی اور مالکن سے سوال کرنے لگی، امام اوزاعی کی بیوی سے پوچھنے لگی، آئی امام اوزاعی کی بیوی یہ بتاؤ، جہاں پہ امام اوزاعی نماز پڑھتے ہیں کیا یہاں پہ کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے؟ دیکھو دیکھو زمین بھیگی ہوئی ہے۔ خادمہ کی، نوکرانی کی اس سوال کے جواب میں امام اوزاعی کی بیوی جواب دیتی ہے، او خادمہ، او نوکرانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے میرا شوہر امام اوزاعی رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے اور رات کی تاریکی میں کھریٹ نہیں لگاتا ہے، سو کر کے پوری رات گزار نہیں دیتا ہے، بلکہ وضو بناتا
जाता है, नमाज पढ़ता है और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को याद करके इतना रोता है, रोने की वजह से जो आंसू निकलते हैं उसी आंसू से जमीन भीगी हुई है। हम और आप मोबाइल पे चल रहा है सब कुछ, हम और आप रो रहे हैं। अब ये मंत्र आपको अब्दुल्ला सालिम सुनाएंगे, आज कुरान और हदीस ही सुनिए, कभी किसी और जगह पे एक मौजू ही दे दीजिए मंत्र वाला। गौर कीजिए मेरे भाई, अब एक मंत्र सुना करके पूरा टॉपिक ही बेकार हो जाएगा। गौर कीजिए, ये मोबाइल बड़ा फितना है और इंसान के ईमान को बर्बाद करने का जरिया है। जो लड़कियां लड़कों से दूर रहा करती थी पाबंदियों के साथ, आज उसके हाथ में मोबाइल लाया, एक मैसेज आया, हाय, किसने भी लिखा हाय, फिर हेलो, फिर मिलो, तब मिलो। मेरे भाइयों, ये सब कुछ हो रहा है इसी मोबाइल ने बहाया लड़कियों को बेहया बना दिया है। जो अपने चेहरे से नकाब उतारने को तैयार नहीं थी, आज वो लड़कियां अपने पूरे कपड़े और पूरा ड्रेस उतारने को तैयार है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अभी माफ करो मुझे, गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो हालात कहां से कहां बदल गए हैं। इस मोबाइल ने लड़कियों को ज़िनाकार बना दिया है तो लड़कों को भी ज़िनाकार बना दिया है। आज उसी मोबाइल में देखते हैं किस तरीके से गलत काम किया जाए, एक एक तरीका को देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये नेमतें मिली हुई हैं, इन नेमतों की कदर कर लो। बंद कमरे में जो काम कर रहे हो मेरी बहनों, जो काम तुम मोबाइल के जरिए से कर रहे हो, अल्लाह की कसम इन तमाम चीजों का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जब उसी जंगी हुदैबिया के मौके पे अल्लाह के रसूल के वो सहाबी जो 1400 सहाबी थे, जब उस हुदैबिया के मौके पे गए और वहां पे रहने लगे, उम्रा की गर्ज से गए थे, अब उनके ऊपर कुरान की आयत उतर गई थी कि हालत हिराम में तुम शिकार नहीं कर सकते हो। गौर से सुनिए, हालत हिराम में तुम शिकार नहीं कर सकते हो, जब तुम हालत हिराम से निकल जाओ तब तुम शिकार कर सकते हो। अब वो इधर से उधर जाते थे, उनको शिकार नजर आता था, उनकी आजमाइश हुआ करती थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियब्लुवन्नकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता शिकार के जरिए से। अल्लाह आज़मा रहा शिकार के जरिए से कि इन जानवरों का तुम शिकार करते हो कि नहीं कर रहे हो। उनके सामने वो जानवर आया करते थे लेकिन वो शिकार नहीं करते थे, उनकी ईमान की आजमाइश हो रही थी। अल्लाह ताला कहता है लियअलम अल्लाह मन यखाफु बिल गैब, अल्लाह ताला जानना चाहता था कि कौन अल्लाह को बिना देखे डरता है, अल्लाह को बगैर देखे कौन डरता है, कौन इन शिकारियों से अपने हाथ को रोक रखा है। हालांकि कर सकता था, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि दुनिया वाला नहीं जानेगा, अल्लाह के नबी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है और जिस अल्लाह का पावर ये है कि जमीन के जितने भी चरिंद और परिंदा है, जिन चूटियों की चलने की आवाज को भी जानता है, वो तो मेरे इस शिकार की हरकत को अल्लाह ताला जान लेगा, मेरे अमल बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भाइयों, उन लोगों ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया, शिकार नहीं किया और अल्लाह से डरते रहे। आज मेरे भाइयों, मोबाइल के जरिए से तुम शिकार हो रहे हो, मोबाइल के जरिए से अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, मोबाइल के जरिए से अपनी बेटियों की जिंदगी को, लाइफ को खराब कर रहे हो, अपने बेटों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है तो 10-12 साल के बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल देने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? पहले इसको लाइव बनाने दो मेरे भाइयों, लाइव बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, ये पढ़ लिख करके अच्छा हो जाएगा। अब ये मोबाइल का सही मानों में इस्तेमाल भी कर सकता है। अब ये 10-12 साल का बच्चा मोबाइल का क्या इस्तेमाल करेगा? वही तो झूम बराबर और चमक छिल्लो वाले गाने तो सुनेगा। मेरे भाइयों, इसको कुरान की आयतें सुनने को टाइम तो नहीं मिलता है। आज मोबाइल के अंदर वही चीजें सुनी जा रही है। आज इस मोबाइल ने लोगों के तकवा को बिगाड़ करके रख दिया है, इसका ईमान खराब कर दिया है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वक्त का कातिल बन गया है। आज कभी कभी मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि इंसान मोबाइल को खिला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, कि मोबाइल इंसान को इस्तेमाल कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा, मोबाइल के हाथों आदमी खेल रहा है, मोबाइल का उठो तो उठता है, मोबाइल का सो तो सोता है, मोबाइल सब कुछ उसको करा रहा है। मोबाइल के जरिए से बेहयाई, इस मोबाइल के फितने से बचो मेरे भाइयों, वरना ऐसे फितने में पड़ोगे
ऐसे फितने में कि वापस नहीं आ सकती। पूरे तौर पर कहीं डूब ना जाओ तुम। कातिल बन चुका वक्त का कातिल। आज आदमी के पास रिश्तेदार से मिलने का टाइम नहीं है, मोबाइल में लगा हुआ है। पढ़ने का टाइम नहीं, मोबाइल में लगा हुआ है। नमाज के लिए अगर मुअज्जिन अज़ान दे हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, तब भी ये मोबाइल में लगा हुआ है। टाइम ही नहीं है मौलवी साहब, फला को टाइम मैंने दिया हुआ है। कुछ लोग तो इश्क में इतने ज्यादा डूब जाते हैं, 24 घंटा ऐसा लगता है हज कर रहा है, बातें कर रहा है। मोबाइल पे मोबाइल को चूम रहा है, ऐसा लगता है उसको चूम रहा है। लड़की भी सोच मुझे चूम रही है, पागल कहीं के। वो छोटा सा डिबिया को चूम रहा है और तुम्हें लगता है तुम्हें चूम रहा है। मोबाइल के सामने वीडियो कॉलिंग करके लड़कियां नंगी हो रही है, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे भी तस्वीरें वायरल हुई, मालूम है। बॉयफ्रेंड बोलता थोड़ा ये दिखा दो, खोल दिया, अस्तगफिरुल्लाह। अफसोस की बात, अस मौलवी सामने जब जाए तो ऐसा लगता है ये फरिश्ता की बहन है। हाँ मेरे भाइयों, ऐसा लगता है कि इससे बड़ा शरीफ कुछ नहीं, और बाद में वायरल हुआ, अरे ये तो फला फला काम में पकड़ी गई। गौर कीजिए मेरे भाइयों, महबूब जैसे बताए उसी की इश्क में इतना डूब जाता है कि लड़कियां अपनी हया के पर्दे को भी चाक चाक कर देती है और हया खत्म कर देती है। लड़का देखता चला जाता है, लड़कियां दिखाती चली जाती है, पूरा वीडियो बना लिया जाता है और फिर उसके साथ ब्लैक मेलिंग। अब कहां जाओगे, अब तो तुम शिकार हो गए हो। अगर तुम फला दिन नहीं मिले तो ये वीडियो वायरल कर देंगे, ये तुम्हारी नंगी तस्वीर तुम्हारे भाई को भेज देंगे। मरता क्या न करता, अपनी इज्जत का सवाल था, जिस इज्जत को बचाने के लिए उसके माँ बाप ने इतनी कोशिश की, इसी मोबाइल ने उसको इतना ज्यादा जलील बना दिया कि एक नहीं दो नहीं बल्कि एक लड़का तो उसे इस्तेमाल कर रहा है। अब उसी तस्वीर और वीडियो के जरिए से, ब्लैकमेलिंग के जरिए से अपने दोस्तों के साथ उसके साथ सेक्स करा रहा है। ऐसे वीडियो, ऐसी खबरें भी आई हैं और लड़कियों ने बाकायदा सुसाइड भी कर लिया है। क्या करता, घर का मामला था, इज्जत का सवाल था, माँ बाप का चेहरा और सर झुक जाता, क्या करता, मरता क्या ना करता, उसके साथ कोई रास्ता नहीं था। मेरे भाइयों, यहां तक इस मोबाइल ने लड़कियों को पहुंचा दिया है। कितनों भी आपको चाहने वाला हो, तस्वीर क्यों भेजते हैं आप, तस्वीर भेज दिया। खाना बना रही वो भी भेज देता है, नहा रही वो भी दिखा रही है ऐसे नहाती हो, मेकअप कर रही वो भी दिखा रही है। हद हो गई, हद यार, हद, इंतहा कर दी। जिसने पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी, माँ बाप, उसके लिए कुछ नहीं। माँ बाप कहेंगे बेटा नहीं, जिसने 2 दिन टाइम किया था मोबाइल में, एक बार रिचार्ज करा दिया, पूरी जिंदगी देने को तैयार। ये मोबाइल लोगों का वक्त का कातिल बन चुका है। वक्त की आदमी परवाह नहीं करता, पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रहा है। हाँ, पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें भी कर रही है ये लड़कियां, और लड़के भी कर रहे हैं। आज लड़कों को हैप्पी बर्थडे और मदर डे और न जाने फादर डे की हैप्पी मुबारकबादी दे रहा है। घर के अंदर माँ है, उस माँ की खिदमत नहीं है। घर के अंदर बाप है, उस बाप की खिदमत नहीं है। आज घर के अंदर सिस्टर है, भाई है, उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। चला दूसरे को मुबारकबाद देने, चला दूसरे को खैर खाही बताने, चला दूसरे को खुशी करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, ये मोबाइल लोगों के वक्त का कातिल बन चुका है। आज लोगों के पास सारी चीजों का वक्त तो जरूर है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, कुरान के लिए टाइम नहीं है, कुरान की तिलावत करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। आज मेरे भाइयों, हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं, अगर उसको कुरान सुनने के लिए बोला जाए तो उसको बुरा लगता है, नमाज पढ़ने के लिए बोला जाए उसको बुरा लगता है। नमाज पढ़ने के लिए जाओ 8 बजे रात को इशा के नमाज में, हमारे नौजवान लड़के न जाने किस गेम के अंदर मुब्तला है। ऐसा लगता है ये गेम नहीं बल्कि ये हज हो रहा और उम्रा हो रहा है, इसी के जरिए से इसको जन्नत मिलने वाली है। इतना ज्यादा डूब गया है मेरे भाइयों, ये वक्त का कातिल बन चुका है। यही मोबाइल हराम खोरी का जरिया भी बन चुका है। आज मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप आ गए हैं और उसी ऐप के जरिए से मेरे भाइयों ये जुआ भी खेल रहा है। इसी मोबाइल के जरिए से
سے سट्टा बाजी भी हो रही है, इसी मोबाइल के जरिए से हराम खोरी भी हो रही है. याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरु मा खज़ मिनल हलाल या मिनल हराम. नबी ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग हलाल व हराम की तमीज़ नहीं करेंगे, बस माल आना चाहिए, हलाल के ज़रिए से हो या हराम के ज़रिए से हो. मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों को हराम खोरी के ऊपर आमादा कर दिया है. मोबाइल हमारा वक्त का भी कातिल है, ये मोबाइल हराम खोरी का ज़रिया भी बन चुका है. यही मोबाइल कुरान से दूर कर दिया है. आज मोबाइल में गाने में लगा हुआ है, आज मोबाइल के अंदर सीरियलों में लगा हुआ है. पहले फिल्म देखने के लिए लोगों को कटिहार और न जाने कहां कहां जाना पड़ता था, आज मोबाइल के अंदर बटन दबाया और अलग अलग फिल्में देखना शुरू कर दिया. मेरे भाइयों, जरा गौर करो, ये मोबाइल इंसान के लिए कितना बड़ा जहमत बन चुका है, कितना बड़ा फितना बन चुका है. ईमान इसका किस तरीके से जल्दी के साथ निकल रहा है, आदमी सोच भी नहीं पा रहा है. मेरे भाइयों, इससे पहले कि तुम बर्बाद हो जाओ, जहन्नम कन्फर्म हो जाए, इस मोबाइल के फितने से अपने आप को बचाओ, तौबा करो, गार्जियन हो, सही मानों में गार्जियन बनो. कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयती. आपका बच्चा के हाथ में मोबाइल क्यों है? आज तो उसके हाथ में, एक हाथ में कुरान होने चाहिए और दूसरे हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान होना चाहिए. लेकिन आज मोबाइल के तुमने हाथ में मोबाइल दे दिया है, उस मोबाइल के अंदर वो गंदी तस्वीरें देख रहा है, उसी की कॉपी और उसी की नकल हो रही है. आज का आपका बेटा जैसा देखता वैसा करता चला जा रहा है. मेरे भाइयों, अपने बच्चों के फ्यूचर को सही करने की कोशिश करो, उसके मुस्तकबिल को बर्बाद न करो. ये बच्चा कौम का आगे चल करके दाई होना चाहिए. मेरे भाइयों, आपका बच्चा अच्छा करेगा तो आपको सवाब मिलेगा, आपका बच्चा बुरा करेगा तो आपको उसका गुनाह भी मिलेगा. इस वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन रइयतिही. मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है. अब हमारे सामने मौलाना हमारे बाद जो तकरीर करने वाले हैं अब्दुल्ला सालिक, वो आ चुके हैं. मेरे भाइयों, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं, मुझे 2 घंटे का टाइम मिला हुआ था, लेकिन बहर की अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. मैं तो सोचता हूँ 12 बजे मुझको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि भाई हम लोग ऐसे नहीं, कोई फरिश्ता नहीं कि पूरी पूरी रात तकरीर करते चले जाए. बहर कैफ, ये मोबाइल के ताल्लुक से मैंने चंद बातें आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, वरना कहीं कल क़यामत के दिन इसी मोबाइल की वजह से अगर जहन्नम में जाना पड़े तो कितना अफसोस करना पड़ेगा, कितना अफसोस. मेरे भाई, उसको कहा नहीं जा सकता है और अपनी ज़बान से कोई उसको अदा नहीं कर सकता है. मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदा मंद भी है, लेकिन मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए. अपने बच्चों को बर्बाद मत कराइए इस मोबाइल के ज़रिए से. लड़कियों के हाथ में मोबाइल आप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? मेरे भाइयों, उसी मोबाइल के ज़रिए से लड़कियां बेहया होती चली जा रही है, ज़िना के अंदर मुलविस हो रही है. अपनी बहनों को बचाओ, अपने बेटियों को बचाओ, अपने समाज को बचाओ. मेरे भाइयों, इस मोबाइल से अपने समाज को दूर रखो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो नेमतें मिली है, इन नेमतों की सही मानों में हमें कदर करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा. अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो. आमीन. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.